আরম্ভ করি। আজকে অ্যাজ ইট ইজ আমরা জানি ঈশ্বরের বাক্য দিয়ে আমরা কী করি, আরম্ভ করি। ঈশ্বরের বাক্যই আমাদের কী দেয়, স্ট্রেংথ দেয়। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের কী করে, উজ্জীবিত করে, সঞ্জীবিত করে। ঈশ্বরের বাক্য কথা বলে, ঈশ্বরের বাক্য আমাদের নতুন পথে হাঁটতে সাহায্য করে, রিনিউ করে আমাদের মাইন্ডকে, হিলিং দেয়। ঈশ্বরের বাক্য অনেক কার্যকারিতা রয়েছে, হিলিং দেয়। আর ঈশ্বরের বাক্য সর্বগুলি জানতে সাহায্য করে, হু গড ইজ, ঈশ্বরকে তাকে জানতে সাহায্য করে। তাই আসুন সেই বাক্যের দিকে আমরা কী করি, নিজেকে সমর্পণ করি। আজকে উঠে ধরে আমরা সকলে অ্যাজ ইউজুয়াল যে আমরা পড়িতে স্টার্ট আমরা বাইবেল প্রারম্ভ করি। বিশ্ববিদ্যা শেষ হতে যেটা আমরা পড়ি রেগুলার, প্রতিদিন একটা করে আমরা বিশ্ববিদ্যা প্রায় ৬৬ 1 থেকে 20 উত্তর প্রত্যুত্তর করে পড়বো। অর্থাৎ ফার্স্ট ভার্স আমি পড়বো, সেকেন্ড আপনারা, আমি থার্ড আপনারা পড়বো। এইভাবে গোটা বিশ্ববিদ্যা আমরা কী করবো, শেষ করবো। সমস্ত পৃথিবী ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জয় জয় আনন্দধ্বনি করো, তার নামে গৌরব কীর্তন করো, তার প্রশংসা গৌরবান্বিত করো। ঈশ্বরকে বলো, তোমার কর্মসফল কি ভয়াবহ, তোমার পরাক্রমের মুহূর্তে তোমার শত্রুগণ তোমার অতীত স্বীকার করবে। সমস্ত পৃথিবী তোমার কাছে পরিপাল করিবে ও তোমার উদ্দেশ্যে সঙ্গীত করিবে, তাহার তোমার কীর্তন করিবে। চলো ঈশ্বরের ক্রিয়া সকল দেখো, মনুষ্য সন্তানদের বিষয়ে তিনি সকর্মে ভয়াবহ। তিনি সমুদ্রকে শুষ্ক ভূমিতে পরিণত করিলেন, লোকেরা নদীর মধ্য দিয়া পর্বতে ভ্রমণ করিল, তাহাকে সেই স্থানে আমরা আনন্দ করিলাম। তিনি নিজ পরাক্রমে অনন্তকাল কর্তৃত্ব করেন, তার চক্ষু জাতিগণকে নিরক্ষণ করিতেছে। বিদ্রোহীরা আপনাদেরকে উচ্চ না করুক। হে জাতিগণ, আমাদের ঈশ্বরের ধন্যবাদ করো, তার প্রশংসা ধ্বনি শ্রবণ করাও। তিনি আমাদের প্রাণ জীবন দশায় রাখেন, আমাদের চরণ করিতে দেন না। কেননা হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের পরীক্ষা করিয়াছ, রৌপ্য পৌর দিবার ন্যায় আমাদের ওকে পৌর দিয়াছ। তুমি আমাদেরকে জালে ফেলিয়াছ, আমাদের কঠিনে ভারগ্রস্ত করিয়াছ। তুমি আমাদের মস্তকের উপর দিয়া অশ্বারোহী মনুষ্যদিগকে চালাইয়াছ। আমরা অগ্নি ও জলমধ্য দিয়া গমন করিয়াছি, তথাপি আমাদিগকে সমৃদ্ধ স্থানে আনিয়াছ। আমি হোম বলে লইয়া তোমার গৃহে প্রবেশ করিব, তোমার উদ্দেশ্যে আমার সেই মানুষ সকল পূর্ণ করিব। যাহা আমার অষ্টধর উচ্চারণ করিয়াছে, যা সংকটের সময় আমার মুখ বলিয়াছে। আমি তোমার উদ্দেশ্যে মেঘযুক্ত হোম বলে উৎসর্গ করিব, তাহার সহিত মেঘরূপ ধূপদাহ করিব, ছাগলের সহিত বেশদিওকে বলিদান করিব। হে ঈশ্বর, ভূত লোক সকলকে আমরা আসিয়া শ্রবণ করো, আমার প্রাণের জন্য যিনি যাহা করিয়াছেন তার বর্ণনা করিব। আমি নিজ মুখে তাহাকে ডাকিলাম, তাহার প্রতিষ্ঠা আমার জিহ্বাতে ছিল। যদি চিত্তে অধর্মের প্রতি তাকাইতাম, তবে প্রভু শুনিতেন না। কিন্তু সত্য ঈশ্বর শুনিয়াছেন, তিনি আমাদের প্রার্থনা রবে অবদান করিয়াছেন। 20 পদ একসঙ্গে আমরা পড়ি। ধন্য ঈশ্বর, যিনি আমার প্রার্থনা এবং আমার হইতে নিজ দয়া চুরি করেন নাই। আমেন, আমেন। আজকে সকালবেলা ঈশ্বর আমাদেরকে তার দয়া দেখাবেন, আমাদের প্রার্থনাকে কি করবেন না, পূরণ করবেন। তার জন্য একটা কন্ডিশন দিয়েছে, যদি আমাদের চিত্ত অধর্মের দিকে তাকাতাম, তাহলে ঈশ্বর কি করতেন না, শুনতেন না। এই জন্য গীতিকার সে কি বলছে, ধন্য ঈশ্বর, সত্য ঈশ্বর, তিনি আমার প্রার্থনা কি করেছেন, শুনেছেন, অবদান করেছেন। কন্ডিশন হচ্ছে আমার চিত্তকে কি করবো, ধার্মিকতার পথে কি করবো, চালাবো। আমার হৃদয়কে ধার্মিকতার পথে কি করবো, উত্তোলন করবো। আজকে আসুন, আমরা মানুষ, আমরা কেউ বলতে পারি না আমরা কিছু করিনি, কিন্তু যখন ঈশ্বরের কাছে আসি, তার বাক্য আমাদের পরিশুদ্ধ করে, তার বাক্য আমাদেরকে ধার্মিক গণনা করে, তখন আমরা মুক্তি স্বীকার করি। এই আসুন যে প্রভু আমাকে ধার্মিক গণনা করেছি, তোমার রক্তে আমি ধার্মিক হয়েছি। আর আজকে প্রভু তাই তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে তুমি আমার প্রার্থনা আমাদেরকে গ্রহণ করোনি, কারণ আমি তোমার দিকে আমার মুখকে উত্তোলন করেছি, আমার চিত্ত, আমার হৃদয় তোমার দিকে কি করেছি, আমি রাখিয়াছি। আমার হৃদয় এখন তোমার কাছে রাখলাম, তুমি একদম ক্লিনস করো প্রভু, পবিত্র করো আমার হৃদয়কে একদম প্রভু, যেন তোমার কথা আমি শুনতে পারি। তোমার হৃদয় আমাকে দাও প্রভু, এই আকাঙ্ক্ষা আমাদের থাকে। আজ আসুক, এসে আমরা প্রার্থনা যাই। মঙ্গলময় প্রভু, আরেকবার তোমাকে ধন্যবাদ দিই। ধন্য প্রভু, তুমি আমাদেরকে প্রার্থনা শুনেছ, শ্রবণকারী ঈশ্বর, আমাদের হোম বলি তুমি যে গ্রাহ্য করেছো। তোমার গৃহে প্রবেশ করেছি, যে মানব নিয়ে এসেছিলাম তার তুমি পূর্ণ আমরা করেছি, তাই তুমি করতে সাহায্য করেছো। ধন্যবাদ জানাই প্রভু যিশু,
আজকে দূর দূরান্ত থেকে মানুষকে নিয়ে এসো। এই ধর্মবীর লোকদের তুমি তোমার দয়াকে দেখিয়েছো, তোমার করুণা থেকে বর্ষণ করেছো, তোমার বাড়ি থেকে সিদ্ধ করেছো, পবিত্র একটা চালনা দিয়েছো। আজকে যখন আমরা বসেছি প্রভু, আমাদের হৃদয়কে খুলে দাও, চোখকে খুলে দাও, তোমার সঙ্গে হোক আমাদের কথোপকথন। প্রার্থনা করি অসৎ হৃদয়ে তুমি নাড়া দাও, তোমার সঙ্গে গমনাগমন করতে পারি, যাবার সঙ্গে যেমন আশীর্বাদ সেই হৃদয়কে তুমি নাড়া দাও। সাধারণকে যেমন বুদ্ধি দিয়েছো, দায়িত্বকে যেমন প্রার্থনা করতে সাহায্য করেছো, আমাদের সেরকমভাবে গড়ে তোমার তোলো। কাছে প্রার্থনা করি তোমার বাক্য, তোমার প্রার্থনা, তোমার আরাধনার মধ্যে সময় কাটাতে পারি। প্রতিটা দিন যেন আমরা তোমায় নিয়ে গমনাগমন করতে পারি, তুমি আশীর্বাদ করো। আজ যা কিছু তুমি আমাদের প্রার্থনা শুনেছো, দিয়েছো, সব কিছুর জন্য তোমার ধন্যবাদ। যে বাক্য প্রার্থনার মধ্যে তুমি তাকে আশীর্বাদ করো, সব কিছুর জন্য তোমার ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। সবথেকে সিক্ত করো প্রচন্ড বৃষ্টির দাবালয়ে যখন মানুষ খুব পরিশ্রান্ত, তখন তোমার বাক্য সিক্ত করো প্রভু। তোমার জল, তোমার সে পবিত্র একটা জল দাও প্রভু। সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত ক্ষুধার্ত হৃদয় রয়েছে, হাহাকার হৃদয়, সেখানে পরিতৃপ্ত করো। তুমি জীবন্ত জল প্রভু, তুমি প্রসত্য জীবন প্রভু। তোমার কাছে রাখলাম এটা সার্ভিসের ভার তুমি নাও। যে সমস্ত অবস্থাগুলো আমাদের জীবনে আছে, যা তোমার রবকে শুনতে বাধা দেয়, সেই সমস্ত অবস্থাগুলোকে যিশু নামে দূর করি আমরা। আর বলি পবিত্র আত্মা আজকে তুমি তোমার সঙ্গে হোক আমাদের গমনাগমন। যেমন দাউদ যেমন তোমার সঙ্গে কথা বলতো, আব্রাহাম ঈশ্বরে বন্দী ছিল, এরকম আমরা তোমার বন্ধু হতে পারি প্রভু যিশু। আর মোশে যেমন তোমার শ্রীমুখ দেখার জন্য উন্মুক্ত হয়ে থাকতো, সবসময় থাকতো, সেরকম আমাদেরকে দেখাও। তোমার উপস্থিতির মধ্যে আমাদেরকে রাখো প্রভু, প্রথম থেকে শেষ অবধি সব তোমার হাতে দিলাম প্রভু। এই প্রার্থনা যিশু তোমার নামে চাই না, আমেন। यीशु है सच्चा कलरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चलाता है। यीशु है सच्चा कलरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चलाता है। वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुख दई झरने बहते हो। वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ पर सुख दई झरने बहते हो। यीशु है सच्चा कलरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चलाता है। यीशु है सच्चा कलरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चलाता है। তাইতো তিনি একমাত্র সত্য এবং তিনি আমাদের মেষ পালক, যিনি আমাদেরকে চালনা করেন। আমেন। আর এই কারণে যেন আমরা ভয় না পাই বা ভীত না হই, কারণ তিনি সর্বদা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। हमें किसी का डर तो अब नहीं है, क्योंकि यीशु मेरा साथी है। हमें किसी का डर तो अब नहीं है, क्योंकि यीशु मेरा साथी है। यीशु है सच्चा कलरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चलाता है। यीशु है सच्चा कलरिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चलाता है। अंधा वो अंधा अंधा देखने लगा, लंगड़ा ओ लंगड़ा लंगड़ा चल
के लिए ताली बजाकर नाचेंगे अपने यीशु 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 के लिए आमेन आमेन যেন আমরা আনন্দের সহিত যেন আমরা তার গৌরব তার মহিমা তার প্রশংসা করতে পারি সদা সর্বদা হালেলুয়া প্রভু যিশু তোমার ধন্যবাদ করি এই সময় তুমি একমাত্র ঈশ্বর প্রভু সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে মহিমা প্রতাপ পরাক্রম সমদর তোমার প্রভু তুমি রাজাদের রাজা প্রভুদের প্রভু এ স্বর্গ যাহার সিংহাসন পৃথিবী যাহার পাদকে তোমার সেই পবিত্র রক্তের জন্য তোমার ধন্যবাদ দিই ধন্যবাদ করি যে প্রভু গো তুমি সেই তোমার দেহকে ক্ষত বিক্ষত করেছিলে প্রভু গো তোমার রক্তকে ঝরিয়েছিলে প্রভু গো আমাদের জন্য আমাদের পাপের নিমিত্ত তাই তোমার ধন্যবাদ তুমি একমাত্র ঈশ্বর যিনি আমাদের জন্য নিজের জীবনকে দিলেন ও ধন্যবাদ ধন্যবাদ করি পবিত্র আমাকে শুচি করে পবিত্র যিশুর রক্ত আমাকে ছোট করে পবিত্র আমাকে শুচি করে পবিত্র যিশুর রক্ত আমাকে ধৌত করে রক্তে ঈশ্বরের নিকটে ঈশ্বরের নিকটে ঈশ্বরের নিকটে আমরা সবাই চলে যাই পবিত্র যিশুর রক্ত আমাকে শুচি করে পবিত্র যিশুর রক্ত আমাকে ধৌত করে হ্যাঁ প্রভু শুধু তোমারই রক্ত যে রক্ত পবিত্র প্রভু যে রক্ত আমাদের ধৌত করে যে রক্ত আমাদের শুচি করে যে রক্ত আমাদের প্রভু সমস্ত অধার্মিকতাকে দূর করে হালেলুয়া প্রভু তোমার ধন্যবাদ ধন্যবাদ করি এই সময় একটি বার প্রভু তোমার মহানতার জন্য তোমার ধন্যবাদ আসলে আমরা সকলে নিজের মুখে খুলে দিয়ে সময় আমরা তার ধন্যবাদ করি তার গৌরব করি তারই মহিমা তারই গুণগান আমাদের নিজেদের অনুষ্ঠান হওয়ার দ্বারা আমরা করি হালেলুয়া 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 ধন্যবাদ 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 করি ও হালেলুয়া হালেলুয়া
উন্নত প্রভু তুমি অনন্তকাল নিবাসী উচ্চ উন্নত প্রভু তুমি অনন্তকাল নিবাসী তোমার নাম পবিত্র তোমার নাম পবিত্র তোমার নাম পবিত্র তোমার নাম পবিত্র পরিচূর্ণ বিচূর্ণ হৃদয় করো সঞ্জীবিত অক্ষয় প্রাণ পরিচূর্ণ বিচূর্ণ হৃদয় করো সঞ্জীবিত অক্ষয় প্রাণ তোমার নাম পবিত্র সবাই নিজে হাতকে তুলে বলি তোমার নাম পবিত্র 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 হালেলুয়া তোমার নাম পবিত্র হালেলুয়া তোমার শাবালালাবাবাবারি কারালাবাবারে হোশিয়ারালাবাবারে ও রাবাবাসি কেরেলেবেতো you are holy ও শিরালাবাবাবাবারে রাবাবাসি আরালাবাবাবারে ও হালেলুয়া ধন্যবাদ ও তোমার নাম পবিত্র 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 धन्यवाद 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 इस लॉर्ड पवित्र प्रभु आपकी तुम में कोई नहीं है आप सबसे ऊंचे हो प्रभु आपका नाम सबसे ऊंचा है आपके नाम को धन्यवाद है प्रभु आपको हम पवित्र पुकारते हैं क्योंकि आपके ऐसा कोई नहीं है हर समय हर घड़ी जो हमारे साथ रहते हैं हर समय हर घड़ी हर एक विपत्ति से प्रभु हमें छुड़ाते हैं प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं हम आपको पवित्र बोलते हैं धन्यवाद है प्रभु आज के दिन उस समय के लिए प्रभु इतना प्रभु आपके रूप में हम लोग अपने हर सामने में सभी को उत्साहित करके या भाई चलो बस सभी को आपके हाथ में ले जाओ प्रभु आज के दिन में प्रभु अद्भुत कार्य प्रभु आपके मिरेकल वर्क कर जिनके जीवन आप दिखा रहे हैं यहाँ पे जो प्रभु आपके सामने प्रभु जो प्रार्थना विनती निवेदन आपके सामने प्रभु यहाँ पे सभी लेके आए प्रभु आज के दिन वो और एक प्रार्थना विनती का उत्तर देना क्योंकि आपके वचन में लिखा है प्रभु तू मुझे पुकार मैं तुझे पुकार
यहाँ पे जितने प्रभु आपको आज के दिन छुआएंगे, आप हर एक प्रार्थना विनती को प्रभु आप उत्तर में साथ में वापस देना। यहाँ पे जितने जन प्रभु आज के दिन बीमार है प्रभु, जितने जन दुख में प्रभु, मैं आपके नाम से इनके जीवन को छुटकारा मांगता हूँ। आपके नाम से प्रभु आप जीवा राफा प्रभु आप हर एक चीज चंगाई देने वाले, आप एल शद्दाय प्रभु आप इम्मानुएल प्रभु हमारे साथ रहने वाले ईश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि एकमात्र जिंदा खुदा जीवित परमेश्वर आप, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते सर्विस को मैं आपके हाथ में शुरू से ज्ञान तक प्रभु आप हमें गाइड करना प्रभु, आपके होली स्पिरिट के गाइडेंस में पढ़ देना, ताकि हम जो कुछ भी करेंगे प्रभु जन आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा उठे। धन्यवाद प्रभु, मेरा विश्वास है प्रभु हर एक प्रार्थना को सुना, ये प्रार्थना यीशु आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं कि प्रभु ने एक नए महीने में, एक चौथे महीने में ना ऑलमोस्ट हमें 3 वीक प्रभु ने संभाल के रखा है ना। और बहुत कठिनाई हमने अपने जीवन में और अपने वर्ल्ड में देख रहे हैं, राइट। हर दिन नया नया चीज आ रहा है हमारे लाइफ में ना। मास तो खत्म ही नहीं हो रहा था, बहुत कुछ देखा है लोगों ने, बट परमेश्वर ने हमें और आपको जीवित रखा, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। अगर 2 विषय है आज मेरे पास, पहले मैं परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे, उसके बाद द गिडियंस, यू नो द गिडियंस BSI नहीं है, हम लोग द गिडियंस इंटरनेशनल इन इंडिया है ना। गिडियंस अगर आप जानते होंगे तो मैं अगर अभी आपको दिखाता हूँ, ये कलर का बाइबल है ना। बहुत जन ने ये कलर का बाइबल देखा है, राइट। तो ये कलर का जो नूतन नियम, बहुत जन बंगला में देखे नूतन नियम, न्यू टेस्टामेंट, इंग्लिश में न्यू टेस्टामेंट एंड हिंदी में पवित्र साथ, ओके। तो ये गिडियंस करते हैं, तो गिडियंस के बारे में हम बताने आएंगे क्या है, तो उसके सेकंड मैं चीज बताऊंगा। पहले हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, ओके। और जो समय है मेरे पास, समय के अंदर ही मैं करूंगा, ज्यादा हम नहीं बात करेंगे, तो आप समझे है ना। और मैं चाहता हूं अगर आपके पास बाइबल है तो आप जरूर बाइबल खोलें। आप बंगला में है, बंगला में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस विषय को आज मैं लेके आया हूं है ना, बहुत साधारण विषय है और हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ना। हमने बहुत सारे वचन को देखे, बहुत सारी चीजों को देखे, बट आज इस जगह पे हम क्यों बैठे है ना, आज हम लोग क्यों यहाँ पे आए हैं, किस विषय से हम यहाँ बैठे हैं ना। पता है, एक ही बात है, सिर्फ विश्वास। हालेलुया, विश्वास है ना। इंग्लिश में लिखा है फेथ है ना, हम इंग्लिश में देखते हैं फेथ और हिंदी में विश्वास। बंगाली में क्या बोलते हैं, विश्वास। ओके राइट, गुड है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। आज हम भारत देश में या हम अपने समाज में बहुत बार लोगों के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, राइट। बहुत बार मनुष्य के ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं है ना। यही मनुष्य, यही लोग हमारी मदद करबे है ना, इसके ऊपर मैं विश्वास करूंगा। तो बहुत आज जो भी जनरेशन है ना, आज यूथ जनरेशन हो, एक लड़का एक लड़की एक दूसरे पर बहुत जल्दी विश्वास करते हैं, राइट। एक हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे पर विश्वास के, मम्मी पापा है ना, विश्वास एक इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में है। हम बहुत जन विश्वास करते हैं ना। हम जिस दुकान पे जाते हैं है ना, हम कभी कभी उधार लेके आते हैं, वो दुकानदार कहता है कि नहीं ये दे जाएगा हमें, वो विश्वास के ऊपर देता है, राइट। उधार भी देता है, वो विश्वास के ऊपर देता है, क्योंकि वो आपको जानता है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होगा कि मुझे कोई दुकान पे बोला दादा काल क्या भी देवे, अपनी कोथाय থাকে है ना, दादा हमें दीते पारबो ना, क्या ना, क्योंकि उसके ऊपर हमारे पर विश्वास नहीं है। कि डोंट नो मी है ना, वो मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं पहचानता है ना, उसने मुझे कभी नहीं देखा, राइट। बट आज है ना, बाइबल में जब हम देखते हैं है ना, हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं है ना, हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं है ना, यीशु के ऊपर, जीशु के ऊपर है ना, यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। क्या आपने यीशु को देखा है ना, आपने देखा है, कोई फीलिंग है क्या हमारे अंदर, मतलब कोई एक फीलिंग है नहीं है ना। तो बाइबल कहती है कि ना कि हम लोग कोई फीलिंग से विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉमिस है, बाइबल में एक वायदा है, राइट। बाइबल में क्या है, एक वायदा है, उसके ऊपर में हमने विश्वास किया है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें यह वायदा मिला है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है ना।
प्रभु ने वायदा किया कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आज हम मांग रहे हैं और प्रभु ने हमें दिया है ना, प्रभु ने दिया है। हम अपनी गवाहियों की वजह से आज यहाँ बैठे हैं, हम अपने विश्वास की वजह से आज हम बैठे। किसी ने हमें पैसा दे के नहीं बुलाया है, तो भीड़ पैसा दी आज 100 रुपीज मिलेगा हम लोग चलेंगे, नाश्ता मिलेगा चलेंगे, नोबडी है ना, कोई नहीं आया यहाँ पे। आज आपका विश्वास आपको लेके आया, हालेलुया। और विश्वास ये करिए कि जब आज आप अकेले आए हैं, आज आप अकेले आए हैं, विश्वास ये करिए मेरा पति भी आए है ना, मेरा बेटा भी आए, मेरी बहन भी आए, मेरे कजन भी आए, मेरा रिलेटिव वाले भी आए। ये विश्वास करना जरूरी है, हालेलुया। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज मैं पूरे परिवार के साथ में चर्च जाता हूँ, है ना, मेरा पूरा घराना, मेरा पूरा है ना, हम चर्च जाते, मैं यहाँ हूँ पर मेरा पूरा परिवार है अपने चर्च में। कोई कहाँ है, कोई कहाँ, एवरीवन इज इन चर्च ना, सब लोग चर्च में, क्योंकि हमने प्रभु में विजय पाई है। कुछ बातों को मैं आज रखूंगा और हम आज विश्वास के ऊपर देखेंगे फेथ क्या है। फेथ हमें ओबे करता है ना, ओबे हिंदी में मानना, बंगाली में ओबे है माननो करे है ना, फेथ क्या है, माननो करे, राइट। आज हमें क्या विश्वास को क्या मानते हैं ना, हम बुक ऑफ जनामा उत्पत्ति का खोलेंगे, उत्पत्ति 12 का 1 से 4 देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर ऑफ बुक है ना, उत्पत्ति चैप्टर 12 वर्स 1 to 4 फिर पढ़ेंगे हमारे बीच में, बंगला हो या इंग्लिश हो, हिंदी में हो, कोई पढ़ेंगे? यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और जो तुझे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल्य होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें तू आशीष दूंगा, और तुम्हें उसे श्राप दूंगा, और तुझे भूमंडल के सारे कुल के द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। ओके, जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं ना, जब इसमें लिखा है द कॉल ऑफ अब्राम, है ना, परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने अब्राम को पुकारा है ना। क्या प्रभु आज आपको पुकार रहा है ना। जब मैं वचन में पढ़ रहा था, इस सच मुझे वचन में अपने लिए देख रहा था, है ना, ये वचन अपने लिए देखा, क्या लिखा था, द लॉर्ड हैज सेड टू अब्राम, परमेश्वर ने अब्राम से कहा, क्या कहा, तू अपने देश अपने लोगों को छोड़ दे। हालेलुया। क्या हम अपने लोगों को छोड़ सकते हैं? क्या हम अपने देश को छोड़ सकते हैं? सवाल यह है कि हम प्रभु की पुकार को सुनने के लिए रेडी हैं। सवाल यह है कि हम परमेश्वर पे क्या विश्वास कर सकते हैं। सवाल यह है कि हम आंख बंद करके कि प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं। अब्राहम को सोचिए, अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था कि जब परमेश्वर ने उसको पुकारा, है ना, परमेश्वर के राज के लिए उसको पुकारा, है ना, उससे परमेश्वर ने क्या बोला कि तू अपना पूरा देश अपने लोग को छोड़ दे। कोई कर सकता है? नोबडी कैन डू, है ना, कोई नहीं कर। कोई हमें बोलेगा दादा अपना के इधर यही जो भारत देश अच्छे इधर अपना के छेड़ तो हो गए, आप बांग्लादेश में जाओ, हमें जाओ ना। अभी वही हो रहा है SIR का, आप नहीं भारत नागरिक आप नहीं बता पाएंगे, सीधा बांग्लादेश, सीधा बांग्लादेश। अरे कोई बात नहीं क्या ये है? हमको नहीं जाना है, हम तो यही पैदा हुआ, मेरा सब नहीं, आपको जाना होगा। इट्स नॉट इजी, राइट। क्या बोलता है बाइबल, उसको अब्राहम को बोला कि अपने देश, अपना कंट्री एंड अपने लोगों को ना, अपने लोगों को भी छोड़ना होगा। तुम्हारा माता पिता है, तुम्हारा जो है, सबको छोड़ के तुम जाओ। क्या इतना आसान है? इतना आसान नहीं है। पर परमेश्वर के राज के लिए ना, परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर जब उसे बुला रहा है अब्राहम को, तो एक कॉलिंग दे रहा है ना। वी मस्ट लिसन द कॉलिंग। परमेश्वर की पुकार को सुनने की जरूरत है। हमारे जीवन में हम आराधना तो करते हैं, परमेश्वर की बंदगी तो करते, तारीफ तो करते, पर कभी कभी हम परमेश्वर की कॉलिंग को नहीं सुनते। कभी कभी परमेश्वर की कॉलिंग को हम पुकार देते हैं। बहुत बार कॉलिंग क्या होता है ना, कि हमें गलत चीज को छोड़ना है, पर हम अपनी नजर से बहुत कुछ देखते हैं, अपने
माइंड से अपने समझ का सहारा लेते हैं, तो परमेश्वर ने अब्राहम को ये करने का मौका नहीं दिया, है ना। परमेश्वर ने क्या बोला, तो अपने देश अपने लोग को छोड़ दे ना, है ना, अपने घर अपने पिता का घर भी छोड़ दे। ये बातें मतलब अगर देखा जाए बहुत बड़ी बड़ी बातें, पर आज सवाल ये है कि हम गलत काम छोड़ने के लिए रेडी हैं, कि सवाल ये है कि हम गलत संगति छोड़ने के लिए रेडी हैं। सवाल ये है कि हम जहां रहते हैं शायद वो इलाका हमारे लिए सही नहीं है, कि प्रभु दूसरी जगह हमें बुला रहे हैं कि हम वहां जाने के लिए रेडी हैं। सवाल ये है कि हम अपने लोग को, जो हमारे विश्वासी लोग नहीं है, जो मुझे हमेशा देख के कुछ अलग बात करते, कि हमें उनकी संगति में बैठने लायक नहीं हो, अगर हमें वहां से उठना है ना। परमेश्वर क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है आई विल शो यू, मैं तुझे दिखाऊंगा। अपनी आंखों से नहीं देखना है ना। जो कि होवे हम लोग क्या करते हैं, अपनी आंख से बहुत कुछ देखते हैं, राइट। अरे ये मेरे लिए सही है, इटा हमारे जন্য ভালো আছে, खूब ভালো, और इटा ভালো नहीं, वो सही नहीं है। तो परमेश्वर का नजर एक आशीष की नजर है, हमारी नजर अलग नजर है, हमारी नजर सिर्फ संसारिक नजर है ना। हम लोग कभी कभी लालच करते, কাজ আমার কাছে একটু গাড়ি ছিল তো আমি খুব ভালো চট যেতে পারবো, है ना। गाड़ी भी आया, अभी बोला पेट्रोल नहीं है हमारे पास। आज के पेट्रोल खूब महंगा हो गया है ना। पहले हम 10 रुपए में जब आते थे तब लेट बहाना मारते थे ना, गाड़ी हो गया तो पेट्रोल नहीं है। एवरी टाइम वी हैव अ प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। बट क्यों? क्योंकि हमने अपनी आंख से नजर को देखा। अगर मेरे पास गाड़ी हो गया, हमारे पास जो बाइक हो गया, साइकिल हो गए, हमें और ताड़ाताड़ी जाबो, और लेट आता है वो व्यक्ति, राइट। देखा होगा आपने, दूर वाले लोग टाइम से आ जाएंगे, पास वाले लोग आधा घंटा बाद लेट आएंगे। क्या ना, हमारे घर खूब काज छिला, हमारे घर इधर, क्या ना, कि परमेश्वर की नजर को नहीं देखते, वो अपनी नजर को सिर्फ नजर लगा के रखते हैं। आज सवाल यह है कि हमें अपनी नजर को बदलना है। सवाल यह है कि परमेश्वर की कॉलिंग को सुनना है। सवाल यह है कि हमें गलत संगति के संग नहीं बैठना है। सवाल यह है कि हमें अपने लोगों को छोड़ना पड़ेगा, जिसके संग वो हमारे प्रभु को नहीं जानते, है ना। सवाल है, परमेश्वर 2 पद में देखिए क्या बोलता है, आई विल मेक यू इनटू अ ग्रेट नेशन, है ना। बंगाली या हिंदी में पढ़ेंगे, देखिए परमेश्वर ने हमें एक वायदा कर रहा है ना। परमेश्वर हमें एक तो वायदा कर रहा है। 2 पद पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है, बंगला हिंदी में जो भी पढ़ेंगे। हाँ, की बोल रहे, एक तुम्हारा क्या बोल लिखा है दीदी, पढ़ेंगे दी। हाँ हाँ, हालेलुया, है ना, हालेलुया, है ना। जब वचन को मैं पढ़ रहा था, सच में मेरे को ऐसा लगे परमेश्वर मुझे आशीष कर रहा है ना। God is going to bless me, है ना। क्या बोलता, I will make you into great nation, एक महान क्या बनाएगा, जाति, एक महान जाति बनाएगा आपको। परमेश्वर ने अब्राहम को जो बोला वो पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया, है ना। अगर आप विश्वास करते हैं आज सुबह, अगर आपके जीवन में वो विश्वास है, अगर आप वो विश्वास करते हैं, तो आने वाले दिनों में आपको भी परमेश्वर महान बनाने जा रहा है। हालेलुया, है ना। अब्राहम ने विश्वास किया, अब्राहम ने विश्वास किया, है ना। उसने अपने घर को छोड़ा, अपने लोगों को छोड़ा, अपने सब लोगों को किया, परमेश्वर की नजर को देखा, है ना। उसने अपने नजर को नहीं देखा, परमेश्वर की नजर को देखा। और क्या बोलता है, आई विल मेक यू इनटू अ ग्रेट नेशन एंड आई विल ब्लेस यू। बोलता है मैं तुम्हें आशीष करूंगा। हालेलुया। प्रभु आज ये सुबह हमें आशीष करने जा रहा है, और क्या हम उस आशीष को लेने के लिए तैयार हैं? क्या उस आशीष को पाने के लिए तैयार है? अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने चर्च के लिए, क्या हम आशीष का कारण बनना चाहते हैं? God is ready to bless you, पर क्या उस आशीष को हम लेना चाहते हैं? बोलता है क्या, बोलता है I will make your name great, मैं तेरे नाम को क्या बनाऊंगा, एक बहुत महान बनाएगा। वाओ, मेरा नाम है ना, हमारा नाम आते जॉर्ज, है ना। जब जो कोई हमारा नाम कोई बोले, हमारा खूब प्राउड हो रहे हैं, मेरे पापा ने मेरा नाम रखा है, बहुत प्यार से रखा है ना। परमेश्वर के लिए हम काम भी करते हैं ना। और जब मैं देखता हाँ परमेश्वर ने मेरे नाम को क्या बनाया, महान बनाया, है ना। क्या आपको वो प्राउड फील होता है? यौन ने वट एवर अपना नाम, अपना जो नाम आचे है ना, परमेश्वर की बोलते आई विल मेक योर नेम ग्रेट, है ना। अपना नामे की करबे
खूब महान করবে, है ना। ये कितनों को तो आनंद है ना, कितना आनंद का बात है, राइट। अपना नेम, यू नो, हमेशा ये नहीं बोला मैं अपना नाम को बहुत ऊंचा करूंगा, नहीं बोलता ना तेरे नाम को। आज पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में हम अब्राहम का नाम को जानते हैं, है ना। यू नो अब्राहम कितना आशीष व्यक्ति है, कितना उसके लाइफ में आशीष हुआ है, क्या वो आशीष हम लेना चाहते हैं ना। और पद उसी के बाद कहता है, क्या बोलता है, एंड यू विल बी अ ब्लेसिंग, तो क्या होगा, तू दयावान आशीष करने वाला भी होगा, तेरा नाम को मैं महान कराऊंगा और तू ब्लेसिंग करने वाला भी होगा ना। हम लोग को ब्लेसिंग भी दे सकते हैं, राइट। कितना महान। 3 पद क्या बोलते हैं, देखिए क्या लिखा है, 3 पद पढ़ के बोलेंगे। যাহারা তোমাকে আশীর্বাদ করিবে, হ্যাঁ। তাহাদিগকে আমি আশীর্বাদ করব। हाँ যে কেউ তোমাকে অভিশাপ দেবে, হ্যাঁ। তাহাকে আমি অভিশাপ দেব। हाँ এবং তোমাদের ভূমণ্ডলে যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদের পাত্র হইবে। हालेलुया, है ना, हालेलुया। पर आज हमारे जीवन में क्या है ना, तुम्हें हमारे खराब बोले थी, तुम्हारे जीवन खराब होवे, तुम्हारे ईटा होवे, तुम्हारा ईटा होवे, राइट। हम अपने मुंह से आप सब निकालते हैं ना, है ना। मानिए हाँ हम लोग निकालते हैं, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग निकालते हैं, हम लोग गलती करते हैं, हम लोग पापी लोग हैं, हम लोग हैं, है ना। बोलिए जो कोई हम लोग पानी भरते हैं ना, मेरे बहुत एरिया में जाता हूँ ना, তুমি আমাকে আজকে জল দেবে না, এটা হবে তোমার, এটা তুমি বক্ক, এটা একটা জলে বালতির জন্য কথা কি বড় বড় করছি আমি, लाइन में ऑटो का लाइन में झगड़ा हो जाता है, ऑटो लाइन में जो कोई लोग जाए, ए हम एक आगे शुरू स्टार्ट, है ना। ट्रेनें को तो ढाका ढाकी हो, है ना, मेट्रो में, लोकल ट्रेन में कौन तो, है ना। बट व्हाट गॉड इज सेइंग, है ना, व्हाट परमेश्वर का वचन कहता है, आई विल ब्लेस दोज हु ब्लेस यू, जो तुझे आशीष करेगा मैं उसे आशीष करूंगा, है ना। जो तुझे आशीष करेगा वो, और जो कोई, है ना, बोलता है बाइबल कहता है, जो कोई तुझे क्या बोलेगा, दुष्ट बात बोलेगा या क्रस करेगा, आई विल क्रस हिम, है ना। प्रभु बोलता है मैं उन्हें क्रस करूंगा, है ना। तुझे बोलने की जरूरत नहीं है ना, आमा के बोलते होवे ना, राइट, है ना। हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। आज सुबह ये समझने की बात है, हम जिस संसार में रह रहे हैं उस संसार को चलाने वाला यहोवा है, हालेलुया। एक जिंदा खुदा है ना, ही नोज एवरीथिंग, वो हर सब कुछ जानता है, पर हम लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं। आप मसीहत बनना, सच्चा मसीहत बनिए, है ना। संडे वाला मत बनिए, गुड फ्राइडे ईस्टर वाला मत बनिए, एवरी डे वाला। आपके जीवन में एवरी डे गुड फ्राइडे है, एवरी डे ईस्टर है, एवरी डे क्रिसमस है, इफ यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ते एवरी डे, आपके जीवन में आशीष है। मैं लोगों को कहता हूं मेरे जीवन में एवरी डे आशीष है भाई, एवरी डे मेरे जीवन में कहीं ना कहीं प्रभु आशीष करते हैं, है ना। हम सांस लेने लायक नहीं है, फिर भी प्रभु ने हमें रोज फ्री ऑफ कॉस्ट सांस देता है। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, हॉस्पिटल में रह रहे, प्रभु ने मुझे ब्लेस किया भाई, प्रभु ने आशीष किया। मैं बहुत ट्रैवल करता पूरा सिटी में, बहुत, प्रभु ने मुझे हर एक्सीडेंट से बचा करके, मेरे परिवार को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे को, है ना। आई हैव 2.5 साल की मेरे पास लड़की है, बहुत प्रभु ने आशीष किया है, एंड आई ब्लेस। मैं कहता हूं प्रभु एवरी डे हमें ब्लेस करता है। व्हाई? बिकॉज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में एवरी डे अप्लाई करते हैं। वीडियो अप्लाई हम बेकार है। हम जहाँ सोसाइटी में मैं रहता हूँ जानते हैं ये क्रिश्चियन है भाई, ये हमारे संग नहीं बैठता है, ये हमारे संग अड्डाबाजी फालतू चर्चा नहीं करते है, ये फालतू को होता है बोले ना, ये सबाई के सम्मान को रहा, हाँ भाई गुड मॉर्निंग, चलिए हाँ सर नमस्ते, बस पोता कोर ना, सबका मदद करता है ना, मदद करने के लिए खड़ा रहेगा, इसका अलग ही पहचान है। व्हाई? बिकॉज परमेश्वर का स्वरूप हमें दिखाना पड़ेगा, है ना। हम सोसाइटी में कुछ और, यहाँ कुछ और, नो 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 नो, सेम फेस, है ना, सेम फेस, है ना। परमेश्वर कह रहा है कि हम तुझे ब्लेस करेंगे ना। और भी हम कुछ वचन को खोलेंगे या पढ़ेंगे, कि 2-3 वचन को मैं और बताना चाहता हूं आपको कि परमेश्वर का विश्वास, उसने विश्वास किया, अब्राहम ने विश्वास किया, उसके जीवन में एक आशीष आया, है ना। हम एक और पद को खोलेंगे,
फर्स्ट सैमुअल, पहला सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 45 to 47, फेथ ऑफ डेविड, है ना, परमेश्वर का एक दाऊद का जो विश्वास था उसको हम देखेंगे। पहला सैमुअल 17 पद 45 to 47, चैप्टर 17। फर्स्ट सैमुअल, पहला सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 45 to 47, है ना। तभी दाऊद के बारे में हम देखते हैं ना, इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था, है ना, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था। कोई पढ़ेंगे हमारे बीच में, फटाफट पढ़ेंगे, समय कम है। তখন দাউদ হ্যাঁ। ফিলিস্তিয়কে কহিলেন, হ্যাঁ। তুমি খড়গ, হ্যাঁ। বর্ষা ও শল্য লইয়া আমার হ্যাঁ। কাছে আসিতেছ, হ্যাঁ। কিন্তু আমি বাহিনীগণের সদাপ্রভু ইসরায়েলের সৈন্যগণের ঈশ্বরের নামে হুম। যাহাকে টিটকারি দিয়েছ হুম। তাহার নামে তোমার নিকটে আসিতেছি। হুম। অত সদাপ্রভু তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিবে, হুম। আর আমি তোমাকে আঘাত করিব, হুম। তোমার দেহ হইতে মুন্ড তুলিয়া লইব, এবং হুম। ফলিস্তীয়দের সৈন্যের সব অত হুম। শূন্যের পক্ষীগণকে ও ভূমির পশুদিগকে দিব। হুম। তাহাতে ইসরায়েলে এক ঈশ্বর আছে, ইহা সমস্ত পৃথিবী জানিতে পারিবে। হুম। আর সদাপ্রভু খড়গ ও বর্ষা দ্বারা নিস্তার করেন না, হুম। ইহাও এই সমস্ত সমাজ জানিবে, কেননা এই যুদ্ধ সদাপ্রভুর, আর তিনি তোমাদিগকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করবে। আমেন। आमेन, आमेन, हालेलुया। है ना, जब इस पद को मैं पढ़ रहा था 45 to 47, इस पद में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, है ना, बहुत बड़ा बड़ा बातें। दाऊद कैसा था, है ना, दाऊद क्या था? एक छोटा व्यक्ति, एक नाटा व्यक्ति, और अपने परिवार में उसके भाई उसको क्या समझते थे? तुच्छ समझते थे, कोई काम करने लायक नहीं है वो, है ना, कोई उसको जिम्मेदारी नहीं दिया गया। उसको हमेशा क्या जिम्मेदारी दिया? वो भेड़ और बकरी को चराने वाला व्यक्ति था। उसके अंदर कोई समझ नहीं था, कोई भी उसके अंदर ज्ञान नहीं था। हम जानते हैं ना, अगर हमने बाइबल पढ़ा है हमें पता है दाऊद का कैरेक्टर कैसा है, दाऊद ने क्या किया, है ना, उसको किसने हराया, उसके सामने कौन खड़ा था, हमें सब पता है। बस सवाल आज ये है, हमारे लाइफ में सच हमें और आप भी लोग को कभी ना कभी कोई तुच्छ समझता है, राइट। हमें और आपको कभी ना कभी लोग सोचते हैं बेकार है, क्या चर्च जाता है, क्या करता है, समथिंग लाइक दैट, यू नो। हमें ना लोग कोई ना सीरियस नहीं लेते हैं, है ना, सीरियस नहीं लेते। दाऊद को भी उसके भाई ने, उसके लोगों ने सीरियस नहीं लिया, है ना। एंड वो क्या कहता है ना, दाऊद एक नंबर, है ना, 45 का पढ़ेंगे, सिर्फ 45 पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ेंगे, 45 पढ़ेंगे कोई भी। তখন দাউদ ও হ্যাঁ। ফিলিস্তীয়কে হ্যাঁ। বললেন, তুমি খড়গ, বর্ষা ও স্বর্ণ লইয়া হ্যাঁ। আমার কাছে আসিতেছ, হ্যাঁ। কিন্তু আমি বাহিনীগণের সদাপ্রভু ইসরায়েলের সৈন্যগণের ঈশ্বরের নামে তুমি যাহাকে টিটকিরি দিয়াছ তারই নামে তোমার নিকটে আসিতেছি। हालेलुया। ओके, एक ही बात पढ़ेंगे, है ना। क्या बोलता है कि तू अपने किसके साथ आया है? तू बहुत सारे अपने तलवार को लेके आया, बहुत सारी चीजों को मेरे पास लड़ाई करने के लेके आया, पर मैं किसके साथ आया हूं पता है? मैं किसके साथ आया हूं पता है? उसमें लिखा है क्या, किसके साथ आया है? ईश्वर के नाम को लेके ना, इंग्लिश में लिखा है क्या बोलता है? बट आई हैव कम against you in the name of the Lord mighty, the God of armor, you know, बोलता है मैं आया हूं परमेश्वर के नाम को लेके तेरे सामने, है ना। आज आपके जीवन में अगर कोई भी चैलेंजेस है, कोई भी समस्या है, कोई भी बीमारी है, क्या परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं? क्या परमेश्वर के नाम को, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये टेंशन चली जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये मेरा जो संकट है निकल जाए। क्या हम ये नाम को पुकारते हैं? क्या हम सिर्फ चिंता करते हैं ना? दाऊद सोचे डरा नहीं था, मैं जब बढ़ रहा था दाऊद डरा नहीं था। इतना व्यक्ति, इतना लंबा चौड़ा है ना, उसके पास तलवार है, उसके पास सब कुछ है, बट इससे क्या बोलता है? मैं परमेश्वर के नाम से आज तुझे क्या करूंगा? खत्म करूंगा। और इतनी बड़ी बड़ी अगर नीचे हम पढ़ेंगे, वो चैलेंज कर रहा है ना, वो लड़ रहा है। सोचिए अगर दाऊद को अगर वो चाहता है एक हाथ से उठा के फटक देगा, तो एक मारेगा, एक थप्पड़ हो सकता गिर जाता है,
बट सोचिए हमारे लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, राइट? हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी समस्या आती है। हम और आप डर जाते हैं, आगे क्या होगा, कल को क्या होगा, क्या हमारे लाइफ में कुछ बदलावट होगा कि नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कॉन्फिडेंट है, विश्वास है, तो आप हर चीज को हरा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने हरा के दिखाया है। दाऊद ने देखिए, एक छोटा व्यक्ति, मामूली व्यक्ति, उससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं देता था, पर वो परमेश्वर के नाम से लड़ता था। देखिए उसने हरा दिया फिलिस्तीन को, उसने हरा दिया। कि आप अपने जीवन की परेशानी को हरा पाएंगे? हरा पाएंगे, हम हरा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक जिंदा खुदा है। हालेलुया। हमारे पास यीशु मसीह है। अगर हमारे पास यीशु मसीह है तो हम यीशु मसीह के नाम से लड़ते हैं ना। और इसमें लिखा है, दिस डे द लॉर्ड विल हैंड यू इन ओवर मी, बोलता आज का दिन परमेश्वर तेरी मुंडी को मेरे हाथ में देगा, बोलता है। सी हाउ कॉन्फिडेंट, वो कितनी कॉन्फिडेंस से बातें कर रहे हैं। जब मैं पढ़ रहा था उसको, मैं देख रहा था उसके अंदर की सामर्थ्य थी, उसके अंदर विश्वास था, उसके अंदर डर नहीं था। आज हमारे लाइफ में डर नहीं होना चाहिए। भाई भी हमारा बहुत कुछ होगा, हमारे भारत देश में बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारा चीज हो रहा है। बट प्रभु को बोले, प्रभु सब कुछ तेरी मर्जी से होगा। हालेलुया। प्रभु के नाम से मांगो, प्रभु तू ये कर, प्रभु करेगा। प्रभु हमारे वेस्ट बंगाल को बदलेगा, हमारे घर को बदलेगा, हमारे चर्च को बदलेगा, हमारे लाइफ को बदलेगा, हमारी पर्सनल चीजों को बदलेगा। और कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह करेगा, और कोई नहीं करेगा। Nobody will do it, मैंने बोला शुरू में कि हम लोग पे विश्वास नहीं कर सकते, लोग धोखेबाज होते हैं। मैं कहता बहुत से लोग धोखेबाज है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है। लोग ने धोखा मुझे भी दिया है, किसी ने हमने गलत नहीं है, पर लोग ने किया है। बिकॉज इंसान में विश्वास नहीं कर सकते। आज एक पार्टी से आदमी निकल के दूसरा पार्टी में जाता है, और यहाँ वायदा करता, कुछ नहीं मिलता तो यहाँ जाता है। किस पे विश्वास करें हम? आप बताइए। हम अपने लीडर पे विश्वास नहीं कर सकते, हमारा लीडर ही चेंज हो जाता है। वी कैन नॉट ट्रस्ट, हम विश्वास नहीं कर सकते। हमें विश्वास करना है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करना है। हालेलुया। विश्वास करना है तो सिर्फ जिंदा खुदा के ऊपर विश्वास करना है। अगर आपको विश्वास करना नहीं, मेरे परिवार में संकट है, मेरे परिवार में चैलेंजेस है, मेरे परिवार में बहुत सारी चीजें हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगिए। मैंने अपने लाइफ में बहुत चैलेंजेस देखे, बहुत संकट देखा है। एक समय ऐसा था कि हमारे घर में सुबह क्या बनता था शाम का पता नहीं था, शाम का पता नहीं था। तो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु ने कभी भी हमें लज्जित नहीं होने दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे कभी भी लज्जित नहीं होने दूंगा। हालेलुया। और आज का ऐसा दिन है, मैं जिस होटल में जाऊंगा, आप 5 स्टार बोले या 7 स्टार बोले, वहां मैं खाना खा सकता हूँ। हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूं ना, प्रभु हमें कभी लज्जित नहीं होने देते हैं ना। प्रभु अपने लोगों को जानता है, प्रभु अपने लोगों को जानता है कि मेरा बेटा और मेरा बेटी कैसा है ना। जब प्रभु हमें 0 से ऊपर बना सकते हैं तो प्रभु कुछ भी कर सकते हैं ना।